إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و یکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ بہت سارے فضائل و خصائص کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کے رابطے میں گزاریں، اللہ رب العالمین کے عبادت میں گزاریں، نیکیوں کو انجام دینے میں گزاریں، انفاق فی سبیل اللہ میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مال و منال عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تھوڑا یا زیادہ رزق عطا کیا ہے، اس رزق میں سے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ یقین مانیں، اس دنیا کے اندر جو بھی آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہی مال ہی آپ کا مال ہے۔ آپ نے جو مال کمایا، کمانے کے بعد اس کو بینک بیلنس بنایا، جمع کیا، رکھ لیا، آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد اور دیگر لوگ اسے تقسیم کر لیں گے۔ لیکن اس دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے غریب بندوں کے حوالے کر دیا، نیک کاموں میں خرچ کر دیا، تو یہی روپیہ پیسہ قیامت کے دن آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، جس دانے سے اللہ رب العالمین 7 بالیاں نکالتا ہے،
وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وسعت والی ہے، اللہ کی ذات جانکار ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ مثال دے کر کے اپنے بندوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو یہ 1 روپیہ 700 روپیوں کے برابر ہے. اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی وسعت کے بدولت اس 1 روپے کو 700 سے زائد بھی کر سکتا ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی. اگر خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ 700 روپیوں کے برابر اللہ دے گا، اور اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تنگی اور خوشحالی دونوں حالت میں. اگر اللہ نے مال و منال دیا، بزنس چل رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بزنس ڈوب گیا، تجارت خسارے میں پڑ گئی، اس کے باوجود بھی جو کچھ ان کے پاس بچا ہوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور جو لوگ اپنے غصہ کو پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے سے درگزری کا معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے. لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں لٹا کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جائیں، اللہ کا پیارا بندہ بن جائیں. یقین مانیے اگر اللہ آپ سے خوش ہو گیا آپ کی زندگی کو سیٹ کر دے گا. اللہ آپ سے خوش ہو گیا آپ کی زندگی سے مصائب و محن کو دور کر دے گا. اللہ خوش ہو گیا آپ کو بیماریوں سے دور کرے گا، پریشانیوں سے دور کرے گا. اللہ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے آپ کے گھروں کے اندر برکت ڈالے گا. لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صدقہ و خیرات کریں. لیکن یاد رہے جو بھی مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ محبوب مال ہونا چاہیے، اچھا مال ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی کا مال ہونا چاہیے. ردی مال کو آپ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے. ردی مال کوئی انسان خریدنا چاہتا نہیں خریدنا چاہتا. اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں تو اپنا محبوب مال خرچ کریں. اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لوگوں سنو، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. وما انفقتم من شيء، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فإن الله به عليم، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. آپ نے جو بھی سامان اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اگر خوبصورت لفافے کے اندر کوئی ردی چیز ڈال کر کے آپ کسی فقیر کو دیتے ہیں تو اللہ آپ کے لفافے کو نہیں دیکھے گا، بلکہ لفافے کے اندر جو چیز ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اللہ رب العالمین اسے دے گا. لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اچھا سے اچھا مال اللہ کے راستے میں دیں. یاد رکھیں انفاق فی سبیل اللہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اجباری اور ایک ہوتا ہے اختیاری. اجباری کا مطلب یہ ہے آپ ہر حال میں آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہی دینا ہے. آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کا من کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کو ہر حال میں اللہ کے راستے میں دینا ہے. ایک ہے اختیاری انفاق فی سبیل اللہ، یہ آپ کے من پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی خواہش پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ چاہیں تو خرچ کریں، نہیں چاہتے ہیں تو خرچ نہ کریں. جو اجباری ہے، جو ضروری ہے، اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ کو آپ ہر حال میں اللہ کے راستے میں دیں گے. اگر نہیں دیتے ہیں تو اس دنیا کے اندر اللہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا،
اللہ इस दुनिया के अंदर तुम्हें फक्र फाका में मुब्तला कर देगा, अल्लाह इस दुनिया के अंदर तुम्हारी जिंदगी को दुश्वार कर देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात किसको कहते हैं? ज़कात के सिलसिले में मेरे भाई और दोस्तों, मुहद्दिसीन जो तारीफ करते हैं, फरमाते हैं कि ज़कात एक मखसूस माल जो मखसूस लोगों को दिया जाएगा, माल के मखसूस हिस्से से। और ज़कात को ज़कात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़कात से इंसान का तज़किए नफ्स होता है। ज़कात के जरिए इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों से पाक करता है। ज़कात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के माल को पाक करता है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए अल्लाह के रास्ते में ज़कात दें। और याद रखें, ज़कात देना ये इस्लाम के अरकान में से एक रुक्न है। अगर कोई मुसलमान जिसका नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान हो, अगर ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है, ऐसा इंसान काफिर है। गरचे उसका नाम अब्दुल्ला हो, गरचे उसका नाम अब्दुर्रहमान हो, अगर ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है, ऐसा इंसान बिल इत्तेफाक काफिर है। ऐसे इंसान पर कुफ्र का फतवा लगाया जाएगा। प्यारे नबी फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोगों सुनो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है? शहादतैन का इकरार, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, इबादत की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के बंदे भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। हमें इसको इकरार करना होगा। दूसरे नंबर पर नमाज की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, रमजान अल मुबारक के रोजे रखने हैं और अल्लाह के घर खाने काबा का हज करना है। ये 5 अरकान है। इन तमाम अरकान की हिफाजत करना हम में से हर मुसलमान के लिए जरूरी और वाजिब है। यकीन माने मेरे भाई और दोस्तों, अगर पहला रुकन शहादतैन का इकरार, इस रुकन में किसी भी तरह की काहली और सुस्ती आई, तमाम अरकान को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेस्तो नाबूद कर देगा। अगर आप नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सदका व खैरात करते हैं, हर साल हज करते हैं, हर साल उम्रा करते हैं, लेकिन अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक ठहराते हैं, यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सारे अमाल को ज़ाया और बर्बाद कर देगा। और क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेगा तो आपको जहन्नम रसीद कर देगा। लेकिन अगर आपकी तौहीद दुरुस्त है, बाकी के अरकान नमाज, रोजा, हज, ज़कात में अगर कहीं मतकाज़ाए बशरियत इंसान से सुस्ती हो जाती है, काहली हो जाती है, अल्लाह उसे माफ कर सकता है। इसी में से मेरे भाई और दोस्तों ज़कात है। ज़कात भी एक रुकन है। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम परवान चढ़े, अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की तालीमात पहुंचे, तो ऐसी सूरत में ज़कात की अदायगी हम में से हर एक इंसान के लिए जरूरी है, अगर उसका माल निसाब तक पहुंचता है। और याद रखें, ज़कात की अदायगी से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल होती है। अल्लाह कुरान में कहता है, रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यूतून ज़कात। लोगों सुनो, मेरी रहमत तमाम चीजों को घेरे हुए है। अगर आप इस मस्जिद के अंदर आए हैं, बैठे हुए हैं, खिताब सुन रहे हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत शामिल है। अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं और आप अपने कानों से सुन रहे हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत शामिल है। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है, फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यूतून ज़कात। लोगों सुनो, अनकरीब मैं अपनी रहमत को उन लोगों के नाम लिख दूंगा जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। मालूम हुआ कि अगर आप अल्लाह की रहमत से दूर हैं, अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हैं, तो ऐसी सूरत में एक अहम वसीला अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को पाने के लिए ज़कात की अदायगी है। लिहाजा अगर आपके पास माल है, आपको अल्लाह ने मालो मनाल से नवाजा है, तो कारून और हामान बनने की कोशिश मत कीजिए, उसको जमा करके सैद करके रखने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अल्लाह ने जितना आप पर वाजिब किया है उसकी अदायगी कीजिए और जिनको देना है उनके हवाले कीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, आपके पास कितना माल है तो ज़कात वाजिब है। इस सिलसिले में मैं आपके सामने निसाब को बयान कर देना मुनासिब समझता हूं।
अगर किसी आदमी के पास 85 ग्राम सोना है, 85 ग्राम सोना है और उस सोने पर 1 साल मुकम्मल हो गया है, यानी हौलाने हौल मुकम्मल हो गया है, ऐसे इंसान पर ज़कात वाजिब है। और 85 ग्राम की जो मौजूदा कीमत है, आज की कीमत है सोने का, अगर हम एतबार करें, सोने को हम मेयार बनाए, तो आज की इस तारीख में जिस आदमी के पास 5.5 लाख रुपए हैं, ऐसे इंसान पर ज़कात वाजिब और जरूरी है, ऐसे इंसान को ज़कात अदा करना चाहिए। लेकिन अगर हम फकीरों के हक में ज्यादा खैरख्वाह हैं और हम चांदी को मेयार बनाए, तो आज की इस तारीख में अगर किसी आदमी के पास 595 ग्राम चांदी है, यानी तकरीबन 600 ग्राम चांदी अगर किसी आदमी के पास है, तो उसमें ज़कात वाजिब है, अगर वो चांदी, उस चांदी पर 1 साल गुजर गया हो। और चांदी की 595 ग्राम चांदी की कीमत क्या है? 53,000 रुपए। यानी आपके पास अगर 53,000 रुपए हैं, उस पर हौलाने हौल मुकम्मल हो गया है, तो आप पर ज़कात की अदायगी वाजिब और जरूरी है। इसमें आपकी मन और ख्वाहिश का कोई एतबार नहीं होगा। अगर ज़कात की अदायगी नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पकड़ेगा, आपको गिरफ्तार करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जहन्नम के हवाले करेगा। मेरे भाई और दोस्तों, मानईन ज़कात के ताल्लुक से जो लोग अपनी ज़कात को अदा नहीं करते, जो लोग अपनी ज़कात को रोक के रखते हैं, जो लोग अपनी ज़कात में फुकरा और मसाकीन का हक नहीं समझते, ऐसे लोगों के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन कानू यरद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनिही, कि जो लोग अपनी ज़कात को रोक करके रखते हैं, और फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अहवाल को बयान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई, तो वफात होने के बाद बहुत सारे लोग जो ज़कात देते थे, वो ज़कात को रोक लिए, ज़कात को रोक लिया और कहने लगे अल्लाह के नबी की वफात हो गई है, जब नबी जिंदा थे तो हम ज़कात देते थे, नबी की वफात हो गई है, अब हम ज़कात नहीं देंगे। उस वक्त अबू बकर ने कहा था वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन, कि लोगों सुनो कि अगर उन लोगों ने एक रस्सी को भी रोका, कानू यगद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी के जमाने में उस रस्सी को बतौर ज़कात अदा करते थे, और अगर आज की इस तारीख में नहीं देंगे, लक़ातलतुहुम अला मनिही, अबू बकर फरमाते हैं ज़कात रोकने की सूरत में मैं उनसे क़िताल करूंगा और उनसे जंग करूंगा। और ऐसे लोग हकीकत में अगर ज़कात की वज़ीयत का इनकार करते हैं तो वाजिब है कि इनको कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह की जमीन से ऐसे लोगों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। और अल्लाह ताला कुरान में क्या सजा बयान करता है? अल्लाह कहता है अल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह कहता है कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, ऐ नबी ऐसे लोगों को बतला दीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए दर्दनाक अदाब रखा है। फिर अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, कि जो लोग ज़कात की अदायगी नहीं करते, कयामत के दिन इनकी ज़कात को दोज़ख की इनके सोने चांदी को दोज़ख की आग में तपाया जाएगा, और उस सोने चांदी से उनके पेशानी, उनके पहलू और उनके पीठों को दागा जाएगा। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों और दोस्तों, जो सोना चांदी हमारे पास है, इस सोने चांदी को अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो यही सोना चांदी कयामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग में उसे तपाएगा और उसी सोने चांदी के जरिए आपकी पेशानी को दागेगा, आपके पीठ को दागेगा, आपके पहलुओं को दागेगा। लिहाजा अगर चाहते हो कि जहन्नम की आग से बच जाओ, अगर चाहते हो कि आपका सोना, आपकी चांदी आपको ना जलाए, तो ऐसी सूरत में वक्त रहते हुए उनकी जो ज़कात बनती है उसको फकीरों में तक़सीम कर दीजिए, उनको गरीबों में तक़सीम कर दीजिए। और अगर नहीं करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब भुगतने के लिए तैयार रहें कि इसके पास कितना सोना है। हो सकता है मैं और आप ना जानो, हो सकता है हुकूमत को मालूम ना हो, लेकिन आसमान वाले को मालूम है।
आसमान वाले को मालूम है, वो आसमान वाला जर्रा जर्रा एक एक ग्राम का हिसाब लेने वाला है। लिहाजा मेरे भाइयों और दोस्तों, इस माह मुबारक में पूरी ईमानदारी के साथ, धोखाधड़ी नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ अपने मालों का ज़कात निकालिए और सोना चांदी का ज़कात निकालिए। और ज़कात निकालने के बाद उन ज़कात के जो लोग मुस्तहिक हैं उनमें तकसीम कीजिए। अब सवाल यह होता है कि वो लोग कौन हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, हम ज़कात किनको देंगे किनको नहीं देंगे। याद रखें मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़कात के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह मसारिफ को बयान कर दिया है। उनके अलावा किसी और को ज़कात नहीं दी जा सकती, और वो 8 किस्म के लोग हैं। 8 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात दी जाएगी। अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लक़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व बनिस सबील फ़रीदतन मिनल्लाह। इस आयत करीमा के अंदर 8 लोगों का तज़किरा करता है। तज़किरा करने के बाद फरमाता है कि ज़कात सिर्फ इन्हीं 8 लोगों को दिया जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन है? अल्लाह फरमाता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़ात जो है ये फकीरों के लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है, फकीर कौन है? फकीर वो लोग हैं जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, जिनके पास इतना माल नहीं है जो जिससे वो अच्छी जिंदगी गुजार सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। और याद रखिए एक मसला और मैं आपको बयान करता हूँ, फ़ुक़रा से मुराद फकीर बिरादरी नहीं है। बहुत सारे लोग इस सिलसिले में शशोपंज के शिकार रहते हैं। फकीर एक बिरादरी है। बहुत सारे लोग को लगता है कि उस बिरादरी को हम ज़कात देंगे, नहीं। अगर उस बिरादरी में कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, जिसके पास इतना माल नहीं है जिससे वो अपनी जरूरत पूरी कर सके, तो उस बिरादरी को ज़कात देना वाजिब और जरूरी है। लेकिन अगर वो बिरादरी ऐसी बिरादरी है, यानी फ़ुक़रा जो फकीर बिरादरी है, उसमें से ऐसे लोग हैं जिनके पास मालो मनाल है, जिनके पास कोई कमी नहीं है, जो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़कात नहीं दिया जाएगा, बल्कि ऐसे लोगों पर ज़कात वाजिब है। ऐसे लोग दूसरे मसाकीन को ज़कात दे, दूसरे लोगों को ज़कात दे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, जिनकी माली कंडीशन बेहतर नहीं है। दूसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता है वल मसाकीन, मिस्कीन लोग। अब मिस्कीन किसको कहते हैं? मिस्कीन वो लोग हैं जिनके पास खाने पीने की चीजें तो होती हैं, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं होती जिससे वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकें, अपने बीवी बच्चों के अखराजात को पूरी कर सकें। इतना माल नहीं होता, लेकिन इनके पास माल होता है, लेकिन किफायत करने वाला माल नहीं होता। लिहाजा मसाकीन को भी हम अपना ज़कात देंगे। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला तज़किरा करता है वल आमिलीना अलैहा, ज़कात को वसूलने वाले, यानी हुकूमत की तरफ से जो लोग मुतय्यन होते हैं ज़कात की वसूली के लिए, उनको ज़कात में से उनकी मेहनत के बकदर दिया जाएगा, जिसको हम उजरतुल मिस्ल कहते हैं। अब चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ज़कात वसूल करने के लिए लोगों को भेजे। लोग अपने तौर पर जाते हैं, जैसे मदारिस के लोग जाते हैं, मकातिब के लोग जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ज़कात की वसूली के लिए लोगों को भेजे और जो ज़कात आए उसको फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम करे। ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लिहाजा जो लोग भी इसे हिंदुस्तान में ज़कात की वसूली के लिए जाते हैं, ऐसे लोग ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं, वला आमिलीना अलैहा के जुमरे में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी गरीब है, वो नहीं जा सकता ज़कात वसूलने के लिए, तो ऐसी सूरत में अगर वो किसी अमीर को या किसी ऐसे इंसान को ज़कात वसूलने के लिए भेज रहा है, तो उसकी जो उजरत होती है बगैर परसेंटेज के, बाद लोग परसेंट तय कर लेते हैं ना, हम चंदा करने जा रहे हैं, हम ज़कात वसूलने जा रहे हैं, हम 20% लेंगे, 50% लेंगे, 30% लेंगे, ये किसी भी सूरत में जायज और दुरुस्त नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। अगर आमिल जाता है गरीब के वास्ते ज़कात हासिल करने के लिए, तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे उसे उतना ज़कात दिया जाएगा जितनी उसकी मजदूरी बनती है।
लिहाजा आमिलीन आज के इस दौर में जो परसेंटेज लेते हैं वो किसी भी सूरत में जायज और दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, उन लोगों को आप ज़कात देंगे जो जिनकी तालीफ कल्ब मकसूद हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी मुसलमान हुआ है, नया नया मुसलमान हुआ है, आपको लगता है कि अगर हम उसको ज़कात नहीं देंगे तो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि ये दोबारा कुफ्र की तरफ चला जाए, तो ऐसे इंसान को ज़कात देना वाजिब है। इसी तरह से तालीफ कल्ब में वो लोग भी आएंगे, जैसे अगर किसी मुस्लिम मुआशरे के अंदर या मुस्लिम समाज से बाहर कोई ऐसा काफिर है, कोई ऐसा जालिम जाबिर काफिर है कि अगर उसको ज़कात दिया जाए तो ज़कात देने की सूरत में वो मुसलमानों पर हमला नहीं करेगा, मुसलमानों को परेशान नहीं करेगा, मुसलमानों को हलाको बर्बाद करने की साजिश नहीं करेगा, तो तालीफ कल्ब की सूरत में ऐसे इंसान को ज़कात दिया जा सकता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वफिर रिकाब, उन लोगों को ज़कात दिया जा सकता है जिनके गर्दन को आजाद करना मकसूद हो। अब इस दुनिया के अंदर चूंकि गुलाम नहीं है, इस दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर गुलाम नहीं है, हम फिर रिकाब में ऐसे लोगों पर पैसा, ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हैं जो बिला वजह जेलों के अंदर बंद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया है, लोगों ने उसको फंसा करके जेल के हवाले किया हुआ है, जिंदान के हवाले किया हुआ है। ऐसे लोगों की रिहाई की खातिर, ऐसे लोगों की जमानत की खातिर अगर आप अपनी ज़कात ऐसे लोगों पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी ज़कात देते हैं तो जायज और दुरुस्त है, बल्कि देना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वल गारिमीन, मकरूज लोगों को ज़कात देना चाहिए। मकरूज लोग कौन? जिन्होंने किसी से पैसा लिया और उनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि उनको पैसा लौटा सके, लिहाजा ऐसे मकरूज लोगों को ज़कात देना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई आदमी मालदार है, अचानक आफत का शिकार हो गया, उस हुकूमत ने उसकी तिजारत को बुलडोज कर दिया, हुकूमत ने उसकी तिजारत को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, और ऐसा आदमी अगर मकरूज हो जाता है तो ऐसे आदमी को ज़कात देना वाजिब और जरूरी है। और हमें और आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को भी ज़कात दें। और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़कात देना। यहाँ अल्लाह के रास्ते से मुराद मेरे भाइयों और दोस्तों मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं। इस सिलसिले में कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है। फी सबीलिल्लाह के मफ़हूम को वसाअत देना, फी सबीलिल्लाह के मफ़हूम को बढ़ा चढ़ा करके बयान करना किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। फी सबीलिल्लाह से मुराद अगर कोई है तो मुजाहिदीन है, वो लोग हैं जो इलाए कलिमतुल्लाह के लिए मैदान जंग के लिए निकलते हैं, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को ज़कात दिया जाएगा। और आखिरी मसरफ जो है जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है वबनी सबील, मुसाफिरों को ज़कात दिया जाएगा। मुसाफिर जो है, अगर कोई आदमी मुसाफिर सफर कर रहा है, सफर के दौरान किसी ने उसके जेब को काट लिया, या सफर कर रहा है उसके पास इतना पैसा नहीं है वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए, तो ऐसे आदमी को ज़कात देना चाहिए। ऐसा आदमी ज़कात ले सकता है। ये 8 मसारिफ है, इन मसारिफ में हमें अपनी ज़कात को खर्च करना चाहिए। एक अलमिया मैं आपको बयान करता हूं मेरे भाई और दोस्तों, हम ज़कात की अदायगी के लिए उमूमन फुकरा और मसाकीन को तलाश करते हैं। हम देखते हैं हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग कौन हैं जिनके पास खाने को नहीं है या जो परेशान है, उनको ज़कात देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप उनको ज़कात दीजिए, वो मुस्तहिक भी है ज़कात के, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों तक महदूद ना रखें। आप अपने गांव समाज के अंदर देखें कि वो लोग जो मकरूज हैं, जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी ज़कात पहुंचाइए। अपना ज़कात लेकर के रेलवे स्टेशन जाइए, बस स्टॉप जाइए, वहां लोगों से पूछिए कि आप जरूरतमंद तो नहीं हैं। अगर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद मुसाफिर मौजूद हैं तो आप, और वो मुहताज हैं पैसों के, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात देना चाहिए। और मैं मालदारों से गुजारिश करता हूं, उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो अहले सरवत हैं,
जिनका माल निसाब को पहुंच चुका है, जिस तरह वो फकीरों के दर पे जाते हैं, मिस्कीनों के दर पे जाते हैं, ऐसे लोगों को रेलवे स्टेशन भी जाना चाहिए, ऐसे लोगों को बस स्टॉप पर जाना चाहिए और वहां मुसलमानों को तलाश करना चाहिए, पूछना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर है, कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो ज़कात के जरिए उनकी कमी को पूरा कीजिए। इसी तरह से अपने गांव और समाज के अंदर मकरूज लोगों को तलाश कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मकरूज हैं, जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, वो आपसे कह नहीं रहे हैं, आपको समझना होगा, उनके चेहरों के आसार को पढ़ना होगा और अंदाजा करना होगा, हकीकत में वो मकरूज हैं तो उनको भी ज़कात पहुंचाइए। इसी तरह से एक अहम मसला ये बयान करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे माशरे और समाज के अंदर गरीब तबका से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास 5-5, 6-6 बेटियां हैं, जो हमेशा आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अगर चाहे तो अपनी ज़कात को हासिल करने के लिए बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे शहरों में जा सकते हैं, उनके जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग ज़कात को जाकर के दूसरे स्टेट से हासिल कर रहे हैं जो हकीकत में ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, और अगर मुस्तहिक है भी तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मुस्तहिक है। जो लोग इनडायरेक्ट मुस्तहिक हैं वो जाकर के लाखों और करोड़ों रुपए ज़कात को हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये गरीब आदमी अपने घर के अंदर मौजूद रहता है, उसको इतना इल्म नहीं होता कि वो जाकर के सेठों से अपना हक हासिल कर ले, वो अपने घरों के अंदर रहता है। गुर्बत और इफलास की वजह से मेरे भाई और दोस्तों, उसकी बहन बेटियां घरों से बाहर निकलती हैं, पुनः इधर उधर मजदूरी करती हैं। ऐसे लोगों को आप खुसूसी ख्याल में अपने ख्याल में रखिए, ऐसे लोगों को ज़कात पहुंचाइए, और दूसरी जगहों से अगर आपके तवज्जुह से ज़कात मिल सकता है तो आप खुद ज़कात हासिल कीजिए और ऐसे गरीब घरों को पहुंचाइए, ऐसे गरीब लोगों को दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी के अंदर सुकून लाएगा, अल्लाह आपकी जिंदगी को सुधारेगा, इस दुनिया के अंदर आप खुश और खुर्रम रहेंगे। लेकिन याद रखें, ज़कात के साथ अगर धांधली हुई, किसी भी इंसान ने ज़कात के साथ धांधली करने की कोशिश की और अगर वो हकीकत में मजबूर नहीं है, मिस्कीन और फुकरा में उसका शुमार नहीं होता है, वो इसलिए लोगों से सवाल करता है ताकि उसके पास मालो मनाल का अंबार हो जाए। तो इस ऐसे इंसान के सिलसिले में मुस्लिम की एक हदीस बयान करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सअल अमवाल अन्नास तकस्सुरन फइन्नमा यसअलु जमरन फलियस्तकिल औ लियस्तक्सिर, कि जो इंसान लोगों से इसलिए सवाल करता है ताकि उसके पास ज्यादा माल हो जाए, ज्यादा बिल्डिंग बना ले, ज्यादा महल तामीर कर ले और अपनी आन बान शान समाज के अंदर दिखाए, इस वास्ते अगर कोई इंसान ज़कात को वसूल करता है और लोगों के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फइन्नमा यसअलु जमरन, ऐसा इंसान आग का अंगारा सवाल करता है, फलियस्तकिल औ लियस्तक्सिर, अब ऐसे इंसान को चाहिए आग के अंगारे को या तो कम करे या तो ज्यादा करे। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों याद रखें, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप सवाल हरगिज ना करें, अगर आप सवाल करेंगे तो आप जहन्नम की आग का सवाल करते हैं, लेकिन अगर आप हकीकत में मजबूर हैं, आप परेशान हैं, तो आप डंके की चोट पर लोगों से सवाल कर सकते हैं, लोगों से मांग सकते हैं, क्योंकि वो आपका हक है। अगर आप अपना हक नहीं लोगे तो दूसरे लोग आपके हक को ले लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इंफाक फी सबीलिल्लाह करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ जिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अअला जल्ल व अकबर।
اللہ اکبر اللہ اکبر